بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آپ کے سامنے انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس پارے میں 3 صورتیں ذکر کی گئی ہیں: سورہ زمر، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ کی 46 آیات اس میں بیان کی گئی ہیں. ہم مختصر سے اہم آیتوں کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ. اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک سوال ہے. اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے آسان سے معنی یہ ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس ہمارے ہر معاملے کا نگہبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں دراصل یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن توحید والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بس اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ چیز سے ہم اپنے بچوں کو بھی واقف کروائیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو ضرور بضرور ان لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. پھر آپ ان سے کہیے بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی برائی کا تمہارے ساتھ ارادہ کر لے تو کیا اس برائی کو دور کرنے والی کوئی ذات ہے؟ اور وہی اللہ اپنی رحمت کو تم پر نازل کرنا چاہے تو کیا کوئی ایسی ذات ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو تم سے روک سکے؟ قل حسبی اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہیں. علیہ یتوکل المتوکلون. اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ کرنا آتا ہے. سبحان اللہ. ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم پر رحمتیں برسانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم پر خیر نازل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت اور خیر کو نازل فرمائے تو کائنات کی کوئی طاقت نہ رحمت کو روک سکتی ہے نہ خیر کو روک سکتی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائی اور ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمایا. اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیند طاری کر دیتا ہے. حالانکہ یہ بھی موت ہے لیکن مقررہ وقت میں اٹھا دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اسی حالت میں انسان کو موت دے دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے، یعنی وہ بھی موت. لیکن اس موت کو انسان گلے کیسے لگا رہا ہے
کہ मैं थका हुआ हूं, थोड़ी देर के लिए सो रहा हूं। अल्लाह चाहेगा तो इसी हालत में मौत अता करेगा। हम कितने लोगों को ऐसे जानते हैं जो सेहतमंद हालत में सो गए थे, लेकिन नींद की हालत में अल्लाह ताला ने उनको मौत अता फरमाया, हमको मालूम ही नहीं है। इसीलिए जब बंदा बिस्तर पर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, क्या अल्लाह तेरे ही नाम से मरता हूं और तेरे ही नाम से जिंदा होता हूं, क्योंकि मैं अब मौत की हालत में जा रहा हूं। नींद, लोग बोलते नींद में जाते वक्त भी दुआएं पढ़कर जाना है, न जाने अल्लाह ताला इस नींद को कब हमारी मौत का पैगाम बना दे। इसी तरीके से आप देखें, जब हम नींद से बेदार होते हैं तो दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि तूने मौत के बाद हमको दोबारा जिंदगी अता फरमाया। वो मौत कौन सी थी? नींद की। इसीलिए जिंदा हो गए और अल्लाह ताला से हम हम्द व सना कर रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ताकत है और ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी कुदरतों में से एक कुदरत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की आयत नंबर 65 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी तुम्हारी जानिब भी हमने वही किया और तुमसे पहले नबियों की जानिब भी हमने यही वही किया, लइन अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर तुमने शिर्क कर लिया तो हम तुम्हारे अमाल को भी बर्बाद कर देंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। शिर्क की कुरान ने मजम्मत बयान की अल्लाह ताला ने, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। मुशरिकीन की मजम्मत बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जा बजा कि मुशरिक की मिसाल ऐसी है जो आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया, या हवाएं उसको उड़ाकर दूर की वादियों में ले जाकर फेंक दें और दरिंदे परिंदे चरिंदे उसको लोश लोश कर खा ले। शिर्क की मजम्मत बयान की गई है और इस शिर्क को इतना नापसंद किया कि नबियों से भी अगर गुनाह होगा तो अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। यह तंबीह दी गई। इसीलिए मेरे भाई, यहां यह पैगाम हम लोगों को अल्लाह की जानिब से मिलता है कि हम शिर्क को गंदा समझें और अपने अमाल को शिर्क की गंदगियों से पाक रखें और शिर्क की बारीक से बारीक किस्म को जानने और पहचानने की कोशिश करें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की आयत नंबर 73 और 74 में इरशाद फरमाया, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को, मुत्तकियों को जन्नत की तरफ हाकेगा कि जाओ तुम जन्नत में, हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा, कि जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे जन्नत के दरवाजों पर और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, तो जन्नत के दारोगा निगहबान फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की सलामती हो, बड़ी बेहतरीन जिंदगी अल्लाह ताला ने तुमको अता किया, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशगी की जन्नतों में तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। यहां रुककर हम जरा सोचें, यह जन्नतियों का मुकाम है, जन्नतियों का इस्तकबाल किया जाएगा, जन्नतियों को मलाइका हंसी खुशी उनको वेलकम करेंगे। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के वायदे पर यकीन किया था। जब यही मुत्तकी परहेजगार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो कहेंगे, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू, ये जन्नती ऐसे इस्तकबाल पर अल्लाह की तारीफ करते हुए कहेंगे, क्या हमारे अल्लाह, यकीनन सारी तारीफें तेरे ही लिए हैं कि जो जन्नत का वादा तूने हमसे किया था, ऐ अल्लाह तू आज ने उस वायदे को पूरा कर दिया। वअरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, और अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत को कुशादा कर देंगे और कह देंगे कि जाओ जहां मर्जी हो अपनी जिंदगी गुजारो, और मलाइका
वतरल मलाइकत हाफिना मिन हौलिल अर्श, और तुम देखोगे कि अल्लाह के अर्श के अतराफ मलाइका रहेंगे जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहेंगे। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो हक़ और सदाकत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बजा ला रहे होंगे। यह एक छोटा सा नक्शा था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बयान किया। उसके बाद इस सूरत का आगाज होता है जिसे सूरत अल मोमिन कहा जाता है, और इस सूरत का दूसरा नाम सूरह गाफिर भी है और इसको सूरह तिवाल भी कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 10 तक अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श यानी फरिश्तों की तारीफ बयान फरमाया। फरिश्तों की कई किस्में हैं, उनमें से फरिश्तों की एक किस्म यह है जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए होंगे, जैसे कि कहा वयहमिलु अर्श रब्बिका यौमइज़िन फ़ौक़हुम समानिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए रहेंगे। 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को अपने ऊपर उठाए हुए रहेंगे। उन्हीं फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना यहमिलून अर्श, वो लोग जो वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वमन हौलहू, और वो फरिश्ते जो इस अर्श के अतराफ हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो हमेशा अपने रब की तारीफ बयान कर रहे होंगे। वयुमिनूना बिही, उनका ईमान अल्लाह पर पुख्ता होगा। वयस्तगफिरूना लिल मुमिनीना आमनू, वो अहले ईमान पर इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे कि अल्लाह इन मोमिन मुसलमानों की बख्शिश फरमा जिन्होंने तुझ पर अकीदा रखा हुआ है। अहले ईमान के हक में फरिश्ते भी दुआ गो होंगे और कहेंगे रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमा, ऐ अल्लाह तेरी रहमत इंतहाई वसी है, व इल्मा, तेरा इल्म सबसे ज्यादा वसी है, फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों को माफ फरमा जिन लोगों ने तौबा किया, वत्तबऊ सबीलक, और तेरे रास्ते की पैरवी की, वक़िहिम अज़ाबल जहीम, इन लोगों को जहन्नम के अजाब से तू बचा ले। देखिए मेरे भाइयों, मुवहिदीन के साथ अल्लाह की रहमत तो है, अल्लाह की रहमत के साथ साथ फरिश्तों की दुआएं भी हैं। हर किस्म के फरिश्तों की दुआएं हैं। मस्जिदों में आने वाले फरिश्तों की दुआ है, हामिलीन अर्श इन फरिश्तों की भी दुआ है। वो हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर रहे हैं और अल्लाह ताला से उसके अज़ीम इल्म का सवाल कर रहे हैं। और वत्तबऊ सबीलक, सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों के लिए फरिश्तों की दुआएं हैं। वही सिरात मुस्तकीम जिसकी दुहाई हम हर सूरह फातिहा में देते हैं और कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला, तौहीद के रास्ते पर चला, कलिमा तय्यबा के रास्ते पर चला। क्यों? ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह के फरिश्तों की दुआएं लगने वाली हैं। और अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है कि इन फरिश्तों की दुआओं को रद्द नहीं करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस दीन की अहमियत को जताते हुए आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, ये काफिर कितना ही दीन को नापसंद करें, तुम खालिस दीन पर अमल करो और खालिस दीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते रहो। माने क्या है? अल्लाह की आवाज को काफिर कभी पसंद नहीं करते, अल्लाह अकबर की आवाज को कभी काफिर पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम डट कर अड़ा होकर अल्लाह के इस आवाज़ को बुलंद करो। काफिरों की अगर नापसंद हो तो उनकी नापसंद को ठोकरों पर रख दो। सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहेंगे हमारे बाज भाई बोल दिए। कैसे? जब बाबरी मस्जिद का फैसला अदालत में था तो हमारे बाज भाइयों ने कहा अदालत जो फैसला करेगी हमको मंजूर है। अब हिजाब का मसला आया, हमारे भाइयों ने कहा अदालत का फैसला अगर होगा तो हमें मंजूर है। अज़ा का फैसला आया, हमने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद सोचा जाएगा। अल्लाह क्या कहते हैं? ये क्यों? तुमको तो कहना चाहिए हिजाब अल्लाह का हुक्म है,
अज़ा अल्लाह का हुक्म है, इस हुक्म के आगे हम किसी हुक्म को मानने वाले नहीं हैं। यही दीन खालिस है, यही दीन की पैरवी है। वरना क्या करोगे, कल कहेंगे कि नमाज ना पढ़े, हो भाई हुकूमत का फैसला है हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। लॉकडाउन में करके दिखा, हुकूमत ने कह दिया मस्जिदों में ना आए तो हम नहीं आए। अल्लाह ने क्या कहा, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। पहले भी आई बात और यहां पर भी यह बात आई कि खालिस दीन को इख्तियार करना यह अहले ईमान के लिए जरूरी है। काफिरों की रजामंदी, काफिरों की खुशनुदी, इससे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी हासिल नहीं होती। उसके बाद आयत नंबर 21 और 22 से हमारा गुजर हुआ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के मामलात को बयान फरमाया कि अजाब क्यों आता है, अजाब के असबाब क्या है। बिना किसी सबब के अजाब नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या तुम जमीन में घूमे और फिरे नहीं। फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले के लोगों के अंजाम को हमने तुम्हारे सामने बयान किया, क्या तुमने उनके अंजाम को नहीं देखा, क्या उनके अंजाम का मुशाहिदा नहीं किया। कैसे लोग थे वो, कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो बहुत ताकत वाले थे। वह आसार फिल अर्ज़, जमीन में बड़े नुकूश वाले वो लोग थे। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। बात क्या है, गुनाह, गुनाह से रुकना चाहिए। अल्लाह का अजाब गुनाहों की वजह से आता है, अल्लाह की पकड़ गुनाहों की वजह से आती है, जब बंदा तौबा को भूल जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जब किसी कौम में सूद और जिना ये दोनों ज्यादा हो जाएं, तो इस कौम को अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो गुनाह का काम कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को पैदा फरमाया कि अहले ईमान की पैदाइश का मकसद क्या है, गुनाहों का जमीन से खात्मा हो जाए, गुनहगारों को गुनाहों से रोका जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को पैदा फरमाया। लेकिन हमारी मिसाल ऐसी हो गई कि हम ही हो गए, हम ही सो गए। दास्तां कहते कहते हमको अपनी मुसलमानियत पर फख्र है, लेकिन हमारे गुनाह हमको नजर नहीं आते। तब अल्लाह ताला मुख्तलिफ अजाबों के जरिए से हम लोगों को गिरफ्त फरमाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया आयत नंबर 66 में। और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ऐ लोगों सुन लो, मुझको मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि मैं गैर अल्लाह की इबादत करूं, जबकि मेरे पास दलाइल आ चुके हैं। वो उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं उस अल्लाह तबारक व तआला पर अपने ईमान को मुकम्मल करूं और उस अल्लाह के पर इस्लाम रखूं। माने क्या है, गैरुल्लाह के लिए अल्लाह के नबी को मना कर दिया गया, अल्लाह के मां सिवा। जब नबी को मना कर दिया गया तो नबी के मानने वालों को बदर्ज औला सोचना चाहिए कि गैरुल्लाह क्या होता है, उससे उनको रुक जाना चाहिए। क्यों, लम्मा जाअनी अल बय्यिनात, चलिए बात मान ली जाएगी। जब इल्म नहीं था तो हम गलत काम करते थे, अब तो इल्म आ चुका है, अब तो इल्म आ चुका है। देखें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दिया, क्या कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं जो बात आपके सामने नसीहत के तौर पर कह रहा हूं, क़द जाअनी अल इल्म मिन रब्बी, कि मेरे रब की तरफ से मुझको इल्म आ चुका है। सुभान अल्लाह, दावत तौहीद अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा इल्म है। यह वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने नबियों को अता फरमाया। लेकिन क्या बंदा इसके बाद भी अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को पुकारेगा, जिसके लिए नबियों को मना कर दिया गया है? तो ये एक नसीहत अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को किया था। उसके बाद
आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी को खिताब करके फिर फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्बिर इन्न वादल्लाहि हक, ऐ नबी आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। व इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना युरजाऊन, अन करीब हम सारी की सारी चीजें तुमको दिखा देंगे या तुमको वफात दे देंगे, क्योंकि लौटना हमारे ही पास है और वो सारे लोगों की जिंदगियों का हाल हम आपको दिखा देने वाले हैं। इसके बाद सूरह हामीम सजदा का आगाज होता है, जो मक्की सूरत है। हामीम सजदा, इस सूरत का नाम फुस्सिलत भी है। मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उतबा बिन रबिया को अपना कासिद बनाकर भेजा था, और जब उतबा बिन रबिया अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, तुम इस दावत को छोड़ दो, तुम इस दावत के मुकाबले में क्या चाहते हो? हमारे सरदार बनना चाहते हो? हमें मंजूर है कि हम तुमको अपना सरदार मान लेते हैं। नहीं, इस दावत के सिले में तुम मालदार बनना चाहते हो तो हम अरब की पूरी दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे, लेकिन यह काम से बाज आ जाओ। या फिर तुम इस दावत के जरिए से यह चाहते हो कि अरब की खूबसूरत औरत से निकाह कर लो, तो हमें यह भी मंजूर है, हम अरब की खूबसूरत तरीन औरत तुम्हारी जिंदगी में लाकर बसा देंगे। अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए। बार बार अल्लाह के नबी पूछते कि आपकी बात खत्म हो गई तो मैं कुछ कहूं? वो कहता है कि नहीं, मुझे और कहना है। बोलो। एक वक्त आया कि उसने कहा कि मेरी बात खत्म हो गई, चलो तुमको क्या कहना है कहो। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा से यही कहा था, यह सूरत पढ़कर सुनाई थी, हामीम अस्सजदा। जब यह सूरत अल्लाह के नबी ने पढ़ के सुनाई तो उतबा सीधा कुछ कहे बगैर उठा और सीधा सरदारान कुरैश की तरफ चला। जो उसके इंतजार में थे उन्होंने पूछा, क्या बात है उतबा, क्या जवाब लेकर आए हो मोहम्मद के पास से? तो उसने कहा, देखो मैं तुमको एक मशवरा देना चाहता हूं कि मोहम्मद जिस हाल पे है मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दो, इसी में तुम्हारे लिए नजात है। तो कहने लगा, ओहो, क्या तुम पर भी मोहम्मद का जादू चल गया? उतबा सीधा चला गया। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए तहजीर बयान फरमाया था जिसका खौफ उतबा के ऊपर सवार हो गया। इससे एक दलील यह मालूम हुई कि कुरान मजीद को गैर मुस्लिमों के सामने जब हम पढ़कर सुनाते हैं तो यह कुरान उन पर असरअंदाज होता है, उन पर असरअंदाज होता है और उन पर भी इसका खौफ तारी होता है। लिहाजा ऐसी मजलिसें हम बपा करना चाहिए जो तिलावत कुरान के हवाले से हो और गैर मुस्लिम वहां बैठे हमारे साथ, वो भी कुरान के लबो लहजे को सुने तो अल्लाह ताला उनके दिल पर यकीनन असर डालेगा और यह चीज कुरान पढ़ने और दीन समझने के लिए उनके लिए काफी हो जाएगी। आज के इस पारे में 24वें पारे में जो अहम नुकात थे उसको मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ रखने की कोशिश किया है। इंशाअल्लाह कल आपके सामने 25वें पारा इंशाअल्लाह पढ़कर सुनाया जाएगा। हो सकता है कि और 2 दिन ऐसे ही दिनों में हम 2-2 पारे आपके सामने इसीलिए पढ़कर सुनाएंगे क्योंकि 30वां जो पारा है वो 30वां पारा जल्द मुकम्मल होने वाला नहीं है, जिसके अंदर काफी सूरतें बयान की गई हैं और हर सूरत के सिर्फ फजाइल हम बयान कर देंगे तो हमारे लिए 2-3 घंटे का दर्स हो जाएगा। इसीलिए ऐसे दिनों में कल तो 1 पारा होगा, इंशाअल्लाह फिर परसों हम 2 पारे करेंगे। ऐसे कर कर इंशाअल्लाह कुरान को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक और सादत नसीब फरमाए।